Okay, now let's start recording of revision of essay 220 quality control for an audit of financial statements. सबसे पहले इस essay की हम क्या करने क्वालिटी कंट्रोल की. देखो क्वालिटी कंट्रोल से ऐसे कौन सा डील करते हैं. एक सबसे SQC1 कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फर्म्स के केस में, और essay 220 बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट के लिए कि क्या क्या क्वालिटी कंट्रोल मेजर करके रखने हैं. तो इस essay में क्या क्या कवर होता है. फर्स्टली द ऑब्जेक्टिव, that is the implementation of quality control procedures at engagement level to provide the reasonable assurance that audit comply with the standards and requirements of legal and statutory requirements. An audit report is appropriate. And what are the requirements under this essay? Leadership responsibility, relevant ethical requirements, independence, AACR means acceptance and continuance of client relationship and engagement, audit engagement, and assignment of engagement team and engagement performance. So this is the requirements of this essay. And further in this essay, there is another point, that is engagement quality control review, EQCR. And under that, evaluation, consideration, and documentation some are there, like discussion of significant matters, review of financial and audit report, documentation and conclusion reached. We have to consider engagement in evaluation of independence, consultation have been done properly, documentation. And under this essay 220, what we have to document, that is also there, like procedure, review, completion, unaware of unresolved matter, if any, conclusion. So that is whole picture of this essay now. So now let's dig into this essay. Quality control for an audit of financial statements. Now this essay dealing with the responsibility of EQCR, engagement quality control reviews, means particular engagement quality control के लिए apply हो रहा है ये essay यहाँ पे अब. Under SQC1, firm has obligation to establish and maintain system of quality control to provide reasonable assurance. कि SQC1 में provide करते हैं कि firm has obligation यहाँ पे. But in the case of essay 220, the particular engagement partner is responsible in that case. That reasonable assurance that firm and personnel comply with professional standards and regulatory and legal requirements, and report issued are appropriate in the circumstances. And what are the elements? Leadership responsibility, relevant ethical requirements, AACR, HR, engagement performance, and monitoring. Now, engagement team responsibility is to that implement the quality control procedures and that are applicable in the particular case. That all the quality control procedures that have been formulated by the firm, and that should be applied in the case of applying audit engagement properly. Next, unless information provided by firm or other party, engagement team may rely on firm's quality controls in relation to competence of personals. कि unless information provided by firm, जो मतलब जिस firm के अंडर है या कोई और मतलब जैसे थर्ड पार्टी को भी हम असाइन कर देते हैं उस केस में, कोई ऑडिट्स के केस में, तो उस केस में अगर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं पता, उस केस में ऑडिट जो एंगेजमेंट टीम है वो रिलाई कर सकती है क्वालिटी कंट्रोल पे इन केस ऑफ कि पर्सनल जो भी हमें भेजा गया वो कॉम्पिटेंट है पूरा, एंड द रिक्रूटमेंट एंड द फॉर्मल ट्रेनिंग हैज बीन डन, and that particular is independence has been there, maintenance of client relationship is being there, means that we have to check AACR that has been properly done. कि जब हम कोई भी ऑडिट स्पेसिफिक असाइनमेंट या कोई रिक्वायरमेंट हम चेक करते हैं, हम उसको प्रॉपर्ली एक्सेप्ट करें, पहले सारी टर्म्स को प्रॉपर्ली रीड करें, जैसे हम ऐसे 210 में करते हैं वहाँ पे. और अगर कोई हम कंटिन्यूस करें पिछले साल की, मतलब कोई ऑडिट हमारा ऑडिट ही हमारी पहले से ही था, मतलब क्लाइंट हमारा, उसके हम कंटिन्यूस भी मतलब उसके साथ हम सारे टर्म्स एंड कंडीशंस वापस चेक करें. Next, D point, adherence to regulatory and legal and statutory requirements through monitoring process, कि हम उसको वापस मॉनिटरिंग भी करें ना अच्छी तरीके से, जो जो उनकी इन्फॉर्मेशन, अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज हुआ है तो हम प्रॉपर्ली उनकी मॉनिटरिंग करें प्रोसेस की. Next, now engagement partner. Who is engagement partner? Partner or other person in the firm who is member of ICI. Firstly, he should be the member of ICI and he should be a full-time in practice, means not in service. He should be full-time in practice and responsible for engagement and its performance. He is the solely person who is responsible for the particular engagement and its performance. Now, EQC reviewer, who will engagement quality control review, who will review that part. Partner or other person other person suitably external person, कोई externally पार्टी आएगी सामने जो पार्टनर के लेवल की होगी, with sufficient and appropriate experience, जिसके पास properly experience होगा काम का, and the authority to objectively evaluate the before report is issued, कि वो properly evaluate कर पाए वहाँ पे. And significant judgment engagement team have made and conclusion read, मतलब जो significant judgment हमने engagement team ने बनाई है, conclusion read के वो understand कर पाए. However, if the review is to be done by team of individuals, such team should be headed by the member of institute. अगर कोई टीम इंडिविजुअल की आ रही है वहाँ पे, मतलब कोई और भी पर्सन आ रहे हैं वहाँ पे, तो उसको जो भी लीड करेगा हेड पर्सन होगा वो, दैट शुड बी द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, शुड बी देयर.
So now, if the engagement partner should remain alert through observation and inquiry being done properly. And if he decided to engagement team members are not complying with the relevant ethical requirement, he should determine what appropriate action should be taken in that case. Means उस केस में क्या करना, अगर engagement team member ने कोई properly ethical requirement follow नहीं की, and what the now engagement partner should take the appropriate action in that case, because engagement partner की overall responsibility होगी इस engagement की. Now, what is suitably qualified external person? Because in EQC review, we have seen that suitable external person. Now, who is that? An individual outside the firm with the capabilities. कि जो person outside the firm है, inside नहीं है पहली बात तो. And with the capabilities and competence to the act as engagement partner. It means उसके पास sufficient knowledge है, judgment में कर सकता है, उसके पास properly experience है वहाँ का. That can he be suitable qualified external person. Like partner employee with appropriate experience of another firm. क्योंकि जैसे अगर कोई peer review या कोई QCR वहाँ पे कंडक्ट होगी तो सामने वाला वो चेक करने आएगा, वो भी उसके पास भी फर्म दूसरी फर्म का ही आएगा, वो चेक करेगा वहाँ पे, उसके पास भी suitable experience होगा वहाँ पे. Now we are to check now elements of in the case of audit. Now firstly leadership responsibility for quality of an audit. Now engagement partner in taking overall responsibility because he is the overall responsible person for maintaining the quality and all the thing in the engagement. Now firstly he should be check the importance to the audit quality of, मतलब उसे importance check करनी है audit quality की क्या importance है in performing work, जो हम work perform करेंगे, that is compliance with the professional standards and regulatory and law legal requirements. ये जो professional standards हैं वहाँ पे जो मतलब SS लग रहे हैं, AS लग रहे हैं, INDES लग रहे हैं, that should be complied with. Complying with the firm's quality control policies and procedures. ये जो firm की quality control है या procedures policies that should be complied with. Issuing audit report that should be appropriate. जो भी वो audit report issue करे that should be appropriate in the circumstance. And engagement team ability to raise the concern without fear. This is most important that the engagement team जो भी मतलब वहाँ पे engagement काम करने जा रही है वो अपने concerns को without fear raise करे वहाँ पे, मतलब कोई बिना डरे कि सामने से कि वो क्या कहेगा. That engagement team should raise the concern without any fear. कि यहाँ पे क्योंकि audit report अगर inappropriate issue होगी, in that case engagement partner will be liable in that case. So engagement team should be raised without any fear. Now B point, quality is essential in performing the audit engagement, because we know that quality is essential. And in first point, importance of audit quality. So what is their difference? Now moving to next, independence. In this also independence is covered, like engagement partner forming conclusion on compliance with the independence requirement. कि जब हम कोई भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेक मतलब वो चेक कर रहे हैं वहाँ पे, तो जो भी एंगेजमेंट टीम हम वहाँ पे पर्सन्स करें वो दैट शुड बी इंडिपेंडेंट, कि मतलब वो हो, उनसे हम क्या करेंगे, obtaining relevant information from firm to identify and evaluate the circumstances and relationship that create threat to the independence. कि क्या हमारी थ्रेट से इंडिपेंडेंस क्रिएट हो सकता है. मींस जैसे अगर कोई एंगेजमेंट टीम का पर्सन है वहाँ पे ऑडिटर में ही कि उसने शेयर होल्ड कर रखे हैं वहाँ पे, तो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो सकते, थ्रेट क्रिएट हो सकता है वहाँ पे. That should be properly relevant information from every person should be obtained in that case. Now B point, evaluate the information from identified breaches. अगर कोई पहले identify कोई breach हुई थी वहाँ पे, identified है वहाँ पे, so that should be properly evaluated. Now taking appropriate action to eliminate such threat and reducing to acceptable low level. जितने एक्सटेंट तक हम लो लेवल कर सकते हैं, मीन्स हम प्रॉपर्ली जैसे जो भी अगर कोई आर्टिकल जैसे एंगेजमेंट टीम का पार्ट होके जाएगा तो वी विल चेकलिस्ट हम उसको भेज देंगे प्रॉपर्ली करें वहाँ पे, क्योंकि उससे हम रिड्यूस कर रहे हैं वहाँ पे. अगर मान लो किसी ने गलत फिल कर दी, इन दैट केस वी कांट टेक, बट वी कैन रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल एंड ही कैन विड्रॉ फ्रॉम ऑडिट एंगेजमेंट इफ परमिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन. कि अगर एप्रोप्रिएट एक्शन लग रहा है कि उससे विड्रॉ करना पड़े, बट ही कैन टेक आफ्टर द परमिशन इफ लॉ एंड रेगुलेट परमिट्स. पार्टनर रिपोर्ट टू फर्म इनएबिलिटी टू रिजॉल्व द मैटर. अगर पार्टनर को भी रिपोर्ट करना पड़ सकता है बीच में भी या बाद में भी. नाउ नेक्स्ट, additional competence, understanding of applicable reporting arrangement and reporting to the legislature. कि additional competence ये चीजें भी चेक करें ना वहाँ पे कि competence भी proper हो वहाँ पे. Now AACR, that is acceptance and continuance of client relationship. Point number 2, SQC1 require firm to obtain information necessary before accepting engagement with the new client. कि SQC1 कहता है firm को क्या कहता है कि obtain करें information जो necessary है उस client की information obtain करने से पहले, कि हम सारी obtain करें, उनके board of directors कैसे थे, उनके पास information company की कैसी है, अगर कोई पास ऑडिटर था वो क्यों लीव करके गया, क्या रीजन था, उसकी डिस्क्लेमर क्यों दिया है. सो व्हाटएवर द केस में भी द एंगेजमेंट मींस द फर्म शुड प्रॉपर्ली कैरी ऑन करें वहाँ पे काम, उनका मॉनिटर करें वहाँ पे. इंफॉर्मेशन सच एज फॉलोइंग असिस्ट द एंगेजमेंट पार्टनर इन डिटरमाइनिंग वेदर कंक्लूजन रीच्ड रिगार्डिंग AACR आर एप्रोप्रिएट और नॉट. कि जैसे हम कोई भी क्लाइंट की एक्सेप्ट करें वहाँ पे, उससे पहले हमारी फर्म चेक करेगी ना वहाँ पे उनके
ब्रीफ हिस्ट्री चेक करेगी उनकी वहाँ पे। तो और एंगेजमेंट पार्टनर भी ये चेक कर सकते हैं, उसको असिस्ट कर सकते हैं फॉलोइंग पॉइंट्स लाइक इंटेग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑनर्स, मींस उसके ऑनर्स कौन है वहाँ पे बिजनेस के, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, उनकी इंटेग्रिटी कैसी है। एंगेजमेंट टीम कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म ऑडिट एंगेजमेंट एंड नेसेसरी कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग टाइम एंड रिसोर्सेज, मींस अगर हमें कोई नया क्लाइंट मिल रहा है तो हमारी एंगेजमेंट टीम कॉम्पिटेंट है कि नहीं है ऑडिट एंगेजमेंट के लिए, उनके पास नेसेसरी कैपेबिलिटीज है कि नहीं है कि वो इतने एक्सटेंट तक काम कर सकते हैं, मींस हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉपर होने चाहिए। नेक्स्ट सी पॉइंट, फर्म and engagement team should comply with the relevant ethical requirement. We should know that we have to comply with the relevant ethical requirements. And next, significant matters arising during client and previous audit engagement and implication for continuing relationship, means अगर कोई significant relation matter arise हुआ current year में या previous audit में, तो उसकी implication क्या है हमारी relationship पे, हम उसको continue करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कि means हमें कोई ऐसी information obtain होगी कि उसे हमें छोड़ना पड़ सकता है, कोई ऐसा significant matter था वहाँ पे कि तो हम उस केस में हमें ऑडिट रिपोर्ट भी अपनी चेंज करनी पड़ सकती है इन दैट केस, सो वी हैव टू प्रॉपर्ली चेक द इफेक्ट ऑन दैट पार्ट आल्सो। नेक्स्ट, इफ एंगेजमेंट पार्टनर obtains information that would have caused firm to decline the audit engagement, information available earlier, engagement partner communicate promptly to the firm and that take necessary action, कि अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन थी उसे जो पहले अगर ऑडिट स्टार्ट होने से मतलब या पहले पता होती तो ऑडिट मतलब वो वहाँ पे या तो मतलब लेता ही ना या फिर कुछ और डिसीजन होता इन दैट केस। So in that case, whenever the engagement partner come to this knowledge, he should communicate promptly to the firm. Means उसी वक्त वो firm को inform कर दे वहाँ पे. And then whatever the necessary action will be taken in that case, that has been decided between firm part and the client. Now, assignment of the engagement team. Engagement team also include members having expertise in the specialized area of accounting, auditing, and who perform the audit procedures on the engagement. कि engagement team में वो members भी include होते हैं जिनके पास expertise है specialized area में, कि मीन्स हमने कोई बाहर से एक्सपर्ट किया वो भी हमारी एंगेजमेंट टीम का पार्ट बन सकता है, या कोई आर्टिकल हो गया मीन्स वो भी हो क्योंकि उसके पास एक्सपर्टीज है उस स्पेशलाइज्ड एरिया की अकाउंटिंग या ऑडिटिंग की, और वो अप्लाई कर सकता है ऑडिट प्रोसीजर्स को। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंस एक्सपेक्टेड बाय एंगेजमेंट टीम एज अ होल। एंगेजमेंट टीम एंगेजमेंट पार्टनर में टेक इनटू कंसिडरेशन कि प्रॉपर्ली मींस कॉम्पिटेंस है कि नहीं एंगेजमेंट टीम की पूरी, तो वो क्या कंसिडरेशन टेक फॉर करेगा वहाँ पे, कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कि मतलब प्रॉपर जो भी मतलब वो वहाँ पे काम करने जा रहे हैं उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि नहीं है, appropriate training and participation has been there or not, कि जो भी पार्टनर मतलब जो भी कंसर्न मेंबर्स है वहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे उनकी उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग लिया कि नहीं उस वहाँ पे, कि मतलब कैसे वो बुक करते हैं मींस कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस को वहाँ पे, पार्टिसिपेशन वो प्रॉपर्ली करें वहाँ पे। नेक्स्ट, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, उन्हें पता है कि नहीं ये प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है, क्या चीज़ दैट शुड बी इन्फॉर्म्ड। फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल एंड पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, उन्हें पता होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल एंड पॉलिसी प्रोसीजर्स क्या है, क्योंकि हमने पिछले में लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी देखा कि एंगेजमेंट पार्टनर को ये चेक करना होता है कि फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर अच्छे से कंप्लाई हो। कंप्लाई तो तभी होंगी जब उन्हें पता होगा वहाँ पे, सो अंडरस्टैंडिंग शुड बी देयर बिटवीन दैट मेंबर्स। नेक्स्ट, टेक्निकल एक्सपर्टीज, उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है कि नहीं, मींस कोई स्वैप किया अगर एक्सेल में है, टैली की है, जिसमें भी उनके टेक्निकल एक्सपर्टीज शुड बी देयर। सी पॉइंट, नॉलेज ऑफ रेलेवेंट इंडस्ट्रीज, कोई पर्टिकुलर कोई क्लाइंट किसी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है, जैसे हॉस्पिटल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, कोई मींस मैन्युफैक्चरिंग में है, सो दैट नॉलेज शुड बी देयर ऑफ रेलेवेंट इंडस्ट्री। एबिलिटी टू अप्लाई प्रोफेशनल जजमेंट, किसके पास जजमेंट अप्लाई करने की भी एबिलिटी है कि नहीं है इन दैट केस। नाउ next part, engagement performance, that is direction, supervision and performance. Firstly, direction involves informing members of engagement team of such matters. कि डायरेक्शन क्या इन्वॉल्व करता है कि इन्फॉर्म करना अपने मेंबर्स को एंगेजमेंट टीम को अबाउट सच मैटर लाइक देयर रिस्पांसिबिलिटी, उनकी रिस्पांसिबिलिटी क्या एंगेजमेंट टीम की वहाँ पे, एंड नीड टू कंप्लाई विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट टू प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट विद द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, कि उन्हें अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म माइंड थ्रू आउट द ऑडिट दे हैव टू मेंटेन, कि हमने सबसे पहले तो उनकी रिस्पांसिबिलिटी बतानी है, जैसे अगर कोई नया आर्टिकल आया या फिर जो भी मतलब ऑडिटर मुझे सोच बोलेंगे तो हमें उनकी प्रॉपर रिस्पांसिबिलिटी बतानी है कि इस केस में क्या है, हम आपको उनके एथिकल रिक्वायरमेंट्स बताएंगे कि हमें कैसे परफॉर्म करनी है ऑडिट, हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म माइंड रखने आगे। नेक्स्ट बी पॉइंट, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिव पार्टनर वेयर इज मोर देन वन पार्टनर इन ऑडिट एंगेजमेंट, अगर कोई एक ऑडिट एंगेजमेंट पे जॉइंट ऑडिट कंडक्ट हो रही है वहाँ पे, तो रिस्पांसिबिलिटी क्या रिस्पेक्टिव पार्टनर की, क्या एरिया लॉट है और इशू करेगा इस एरिया में, तो दैट शुड बी प्रॉपर्ली क्लियर, हम उन्हें इन्फॉर्म करके भी चले वहाँ पे अपने। ऑब्जेक्टिव टू वर्क टू बी परफॉर्म्ड, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उस काम को करने का वहाँ पे, दैट शुड बी क्लियर। लाइक अगर इस केस में इंटरनल ऑडिट या स्टैट्यूटरी, इसमें चलो स्टैट्यूटरी ऑडिट में अगर पॉइंट ऑफ व्यू पे रहे हम, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है वहाँ पे, जैसे रेवेन्यू में चेक करना, हमारा वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, वहाँ पे हमें क्या ऑब्टेन करना है, इंश्योरेंस ऑब्टेन करना है, हमने रिस्क को रिड्यूस करना है, दैट्स आवर ऑब्जेक्टिव। नेचर ऑफ द एंटिटी बिजनेस, एंटिटी बिजनेस क्या है वहाँ पे,
रिस्क रिलेटेड इश्यूज, वहाँ पे रिस्क क्या है वहाँ पे हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए। अगर कोई नया पर्सन जा रहा है तो अगर कोई एक्सपीरियंस मेंबर है वहाँ पे उसको रिस्क बताइए, हाँ एरिया में रिस्क होता है तो प्रॉपरली चेकिंग करें वहाँ पे। डिटेल अप्रोच टू परफॉर्मेंस, इस काम को कैसे करना है उसकी डिटेल अप्रोच बताए वहाँ पे, ऐसे करना है कैसे करना है, एक्सेल में कैसे वर्किंग करनी है, कैसे डाटा ऑब्टेन करना है, तो उनको प्रॉपरली बताए। नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट में ऑल्सो राइज, कि वो ये चीज भी बताए प्रॉब्लम क्या राइज हो सकती है, मीन्स क्लाइंट डाटा नहीं देगा या क्लाइंट तो हमें साथ साथ डाटा लेते रहे, जो प्रॉब्लम राइज हो सकती है। क्योंकि वी विल गिव द we will include that person also who is having expertise in that industry, means उसने कोई previous audit कर रखी हो वैसे, तो उसको अगर expertise है वहाँ पे तो हम उस person को भी भेजेंगे ताकि वो सारी guide कर ले अपनी properly. Next, discussion among members of engagement team allows less experienced team members to raise question with more experienced team members so that appropriate communication occur within the engagement team. मीन्स अगर डिस्कशन में मेंबर्स एंगेजमेंट टीम ये अलाउ करती है कि जो अगर जिसके पास लेस एक्सपीरियंस है वो भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं मोर एक्सपीरियंस पे, अगर उसके पास अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन हम उसको दे रहे हैं वहाँ पे कि इस काम को कैसे करना है। अगर कोई नया जाकर इंडस्ट्री में आ रहा है वहाँ पे तो उसको प्रॉपरली इन्फॉर्म करें तो वो भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स के साथ। नेक्स्ट, appropriate teamwork and training assists less experienced team members of engagement team to clearly understand objective of assigned work, कि अगर हम उन्हें प्रॉपरली टीम वर्क बताएं ट्रेनिंग करें उनकी तो लेस एक्सपीरियंस टीम मेंबर भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव का जो से काम द वर्क दैट हैज बीन अलॉटेड टू हिम। नेक्स्ट, रिव्यू अंडर SQC1 वर्क ऑफ लेस एक्सपीरियंस टीम मेंबर इज रिव्यूड बाय मोर एक्सपीरियंस टीम मेंबर, क्योंकि जो SQC1 भी कहता है जो लेस एक्सपीरियंस टीम मेंबर है उसका कोई सीनियर मेंबर वहाँ पे जिसके पास एक्सपीरियंस है वो रिव्यू करे उसके काम का। नेक्स्ट, रिव्यू कंसिस्ट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ वेदर वर्क परफॉर्मेंस हैज बीन वेदर, जैसे अगर रिव्यू वाली बात करें, जैसे अगर कोई 3 लेवल है, मान लो आर्टिकल है उसके ऊपर मैनेजर है उसके ऊपर पार्टनर है, तो मैनेजर अपने उसका रिव्यू लेगा अपने आर्टिकल का जो भी, और जो मैनेजर है जो पार्टनर है एंगेजमेंट पार्टनर है अपने मैनेजर का रिव्यू लेगा। So means more experienced team member will take the review of less experienced team member. Now next, review consists of consideration of whether work has been performed with professional standards and regulatory requirement, कि जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉलो हुए हैं कि नहीं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉलो हुई हैं कि नहीं। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट मैटर रेज्ड, अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर रेज हुआ है तो उस केस में कैसे उसका सोल्यूशन हुआ है, कैसे उसकी कंक्लूजन रीच हुए हैं, दैट शुड बी रिव्यूड। एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन एंड रिजल्टिंग कंक्लूजन हैव बीन डॉक्यूमेंटेड एंड इम्प्लीमेंटेड, कि जो हमने कंक्लूजन रेज किए हैं उसको हमने प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया है कि नहीं किया, और उनको इम्प्लीमेंट अपनी वर्किंग में अगर कुछ चेंज करना था या कंक्लूजन को कहीं भी लिखना था, दैट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड और नॉट। नेक्स्ट, नीड टू रिवाइज एनटी ऑफ वर्क परफॉर्म, कि अगर हमने कोई ऐसा एविडेंस सिग्निफिकेंट मैटर ऑब्टेन किया जिससे हमें एनटी को रिवाइज करना पड़ता है, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट को जो हम काम कर रहे हैं, दैट शुड बी रिवाइज। वर्क परफॉर्म सपोर्ट कंक्लूजन रीच्ड एंड एप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंटेड, कि जो हम काम करें उसको सब अपनी प्रॉपर्ली सपोर्ट करें कंक्लूजन के साथ कि हम जो रीच करें वहाँ पे, और उसकी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन should be there. Next, evidence essay means जो हम evidence obtain करने, that should be sufficient and appropriate in that case. That support the audit report, because on the basis of SAE we have to issue the audit report. उस basis पे हम report करेंगे तो that should be SAE means properly sufficient and appropriate. Next, objective of engagement procedures as achieved. Objective हम properly engagement procedure जो भी हम करें उसके objective को हम पूरा achieve करें वहाँ पे. Now, last EQCR now. रिव्यू ऑफ SAE हैज बीन ऑब्टेन, रिव्यू में क्या क्या हम SAE को भी हम चेक करें वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्ली ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए हैं कि नहीं किए उस काम से रिलेटेड, उस वर्क से रिलेटेड। EQCR एट टाइमली बेसिस अलाउ सिग्निफिकेंट मैटर्स टू बी प्रॉम्प्टली रिजॉल्व। EQCR से क्या होता है, मींस अगर कोई बाहर से पार्टी आ रही है उसको चेकिंग करने, तो अगर सिग्निफिकेंट मैटर अगर कोई अराइज हुआ बाद में तो वो भी प्रॉम्प्टली रिजॉल्व हो जाएगा टाइमली। रिमेनिंग अलर्ट इवन दो एट द स्टार्ट ऑफ एंगेजमेंट सच रिव्यू वाज नॉट रिक्वायर्ड, कि हम प्रॉपर्ली रिव्यू करें ना, अगर एंगेजमेंट स्टार्ट भी नहीं हुई तो भी हम प्रॉपर्ली अलर्ट रहे हमारे माइंड से अंदर पहले से ही। नाउ नेक्स्ट, एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू ऑफ वर्क परफॉर्म, एंगेजमेंट पार्टनर को भी रिव्यू करना होता है जो हमने द वर्क दैट हैज बीन परफॉर्म्ड। नाउ he will allow the significant matter to be resolved in timely basis to engagement partner satisfaction, कि वो अपने टाइमली बेसिस पे खत्म करे ताकि उसको सेटिस्फेक्शन मिले। so on the basis that he will issue the audit report and he will review critical areas of judgment where critical areas have been involved, if there is any significant risk or other areas that engagement partner consider important। मैं सारा काम engagement partner नहीं करेगा in the case, he will assess only the critical areas of judgment, significant risk is there if any, or other areas that he consider important. Next, engagement partner need not review all the documentation but may do, मीन्स ये लाइन क्या कहती है, एंगेजमेंट पार्टनर उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सारी डॉक्यूमेंटेशन को चेक करे, बट ही में डू सो, वो कर सकते हैं वहां पे। नेक्स्ट, however SA 230 से the partner documents extent and timing of reviews, उसे मतलब ये देखना है कि
उसे ये भी डॉक्यूमेंट करना है उसने कब काम देखा, उसका टाइमिंग क्या है रिव्यू करने का, वहाँ पे प्रॉपर्ली वो चेक होना चाहिए। इफ कंसिडरेशन ऑफ मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम विद एक्सपर्टीज इन स्पेशल एरिया इज यूज्ड, मेंबर्स मैटर में इंक्लूड, उस एरिया में क्या क्या हो सकता है, एग्रीइंग विद नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंबर्स वर्क, कि अगर हमने कोई प्रॉपर्ली एक्सपर्टीज बुलाया वहाँ पे उस एरिया के लिए और वो हमारा मेंबर है, तो उसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, स्कोप क्या है पर्टिकुलरली उसके वर्क का, दैट शुड बी देयर। इन इवैल्यूएटिंग द एडुकेसी ऑफ मेंबर्स वर्क एंड रेलेवेंस एंड रीजनेबल शुड बी देयर, अगर हमने कोई बास एक्सपर्ट मेंबर उठाया बुलाया वहाँ पे हायर किया है, तो दैट शुड बी मींस उसका हमने उसको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करें फर्स्टली, और उसके जो उसने काम किया होगा तो उसको हम एडिक्वेटली इवैल्यूएट करें वहाँ पे, दैट इज रीजनेबल एंड रेलेवेंट और नॉट, एंड ही शुड बी डन विद कंसिस्टेंसी और नॉट। नाउ कंसल्टेशन, द एंगेजमेंट पार्टनर शेल अंडरटेकिंग द एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन और डिफरेंट मैटर, अगर कोई डिफरेंट सिग्निफिकेंट रिस्क है तो एप्रोप्रिएट कंसल्ट भी करें मेंबर्स के साथ भी, अपने या फर्म के मेंबर्स के साथ भी। बी सेटिस्फाइड दैट द मेंबर अंडरटेकन एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन, कि मेंबर्स के साथ उनकी प्रॉपर कंसल्टेशन वो हो वहाँ पे, वो सेटिस्फाई रहे वहाँ पे। एंड इट शुड बी सेटिस्फाइड दैट द नेचर स्कोप कंक्लूजन इज एग्रीड विद द पार्टी कंक्लूडेड, कि मतलब पार्टी जो भी इम्प्लीमेंटेड हुआ है, मतलब वो नेचर स्कोप हमारा प्रॉपर्ली रीच हुआ है वहाँ पे। लास्ट कंक्लूजन रीच फ्रॉम द सच कंसल्टेशन हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, कि जो भी मतलब जो हमने मान लो एंगेजमेंट टीम ने कुछ पूछा था एंगेजमेंट पार्टनर से कि किस केस में क्या करेंगे, जिसने जो भी बताया उसको वो भी चेक करें वहाँ पे कि इम्प्लीमेंट हुआ भी है कि नहीं वो। सो नाउ दिस हैव बीन डन। नाउ EQCR, engagement quality control review, that is applicable on listed entity and if other audit engagement अगर वहाँ पे applicable हो रही है EQCR, तो in that case engagement partner shall वो क्या करेगा वहाँ पे EQCR को अपॉइंट करे वहाँ पे, मींस कोई थर्ड पार्टी को मींस अपॉइंट करे वहाँ पे, एंड डिस्कस द सिग्निफिकेंट मैटर ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट इंक्लूडिंग द EQCR मैटर ऑल्सो, मींस अगर कोई एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू चल रहा था वहाँ पे, अगर वहाँ पे कोई आइडेंटिफाइड हो गया उससे वहाँ पे, तो वो भी डिस्कस करे उस पार्ट उसके साथ वहाँ पे। एंड नोट डेट दैट द ऑडिट रिपोर्ट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कि मींस वो ऑडिट रिपोर्ट की डेट वहाँ पे मेंशन ना करे जब तक कंप्लीशन नहीं होती EQCR की, क्योंकि सिग्निफिकेंट मैटर अगर बाद में राइज हुआ वहाँ पे कि ऑडिट रिपोर्ट पे उसका इफेक्ट आ सकता है, so that he should not date the audit report. Next, documentation of EQCR may be completed after date of audit report as a part of assembly of final audit file, कि हम उसकी वो डॉक्यूमेंटेशन या फाइनल कंक्लूजन जो भी चेंजिंग सफलिंग करनी है असेंबली करनी है वो हम बाद में भी कर सकते हैं आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। Next, performance of EQCR doesn't reduce the responsibility of engagement partner for audit engagement and his performance, क्योंकि मेन तो काम engagement partner will be responsible, not the EQCR. So it doesn't reduce the responsibility of engagement partner. उसकी कोई responsibility reduce नहीं होगी in the case. Now next, audit of wait for a while. Now audit of financial statement of listed entity where EQCR shall consider, उसे EQCR को क्या कंसिडर करना है वहाँ पे, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो रही है लिस्टेड एंटिटीज की, तो उसमें EQCR को क्या क्या चेक करना है। एंगेजमेंट टीम इवैल्यूएशन ऑफ फर्म इंडिपेंडेंस, एंगेजमेंट टीम की इवैल्यूएशन हुई है कि वो इंडिपेंडेंस प्रॉपर्ली कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि बाद में ये राइज हो सकते कि इंडिपेंडेंट नहीं थे, तो वो ये रिव्यू करे प्रॉपर्ली कि वो मतलब चेकलिस्ट ऑब्टेन कर सकता है वहां से फाइलिंग हुई है, मींस वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट वो सब हुआ है कि नहीं। एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन टेकन प्लेस, कि हमने प्रीवियसली बात की कंसल्टेशन शुड बी देयर, दैट हैज बीन टेकन प्लेस और नॉट, की मींस अब ये बाद में ये ना हो कि ये हमें पता नहीं था वहां पे, दैट शुड नॉट बी द पॉइंट लेटर ऑन आल्सो। Next, audit documentation that has been selected for review reflects the significant judgment made and support the conclusion reached. मीन जो भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की रिव्यू या सिलेक्शन हुआ रिव्यू का, वो रिफ्लेक्ट करे कि वहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड हुई, उसकी कैसे उसको कंक्लूजन को सपोर्ट किया जा रहा है, जैसे जो भी अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किया है वहाँ पे वो कैसे सपोर्ट करी है वहाँ पे, so that should be proper. Now SS 701 applies, conclusion reached by engagement team in forming audit report including determining, SS 701 क्या करता है कि कंक्लूजन जो भी रीच किया वहाँ पे, KM to be included in the audit report, KM that will not be communicated in audit report, and if applicable depending on fact and circumstances that there are no KM to be communicated, मीन डिपेंड करेगा ना वहाँ पे कि ऑडिट मैटर कोई ऐसा अराइज हुआ है कि नहीं वहाँ पे जो इंक्लूड करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, या फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड कर रहा है वो करे ना करे वहाँ पे। In additional, review of proposed audit report include consideration of proposed wordings in KM section also. अगर क्योंकि EQCR हम ऑडिट रिपोर्ट पे डेट तो डालेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई KM था तो हम प्रपोज ऑडिट रिपोर्ट में भी हम वो पॉइंट मेंशन कर देंगे, KM वहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। जब EQCR हो रही होगी तब वो हम देख लेंगे वहाँ कंसिडरेशन करेंगे उसके साथ डिस्कशन करके। नेक्स्ट, EQCR of listed other matter relevant to evaluating significant judgment made by the engagement team may be considered, कि जो भी अगर significant judgment made किया वो कैसे करेगा, significant risk identified and responses to those risks,
कि जो भी अगर जब हम रिव्यू करे थे जहाँ पे जजमेंट मेड हुई हो, जजमेंट कहाँ पे हुई होगी, जहाँ रिस्क इन्वॉल्व होगा वहाँ पे, अगर वो रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है कि नहीं हुआ, अगर आइडेंटिफाइड हुआ है वहाँ पे तो रिस्पॉन्स क्या है उस रिस्क के अगेंस्ट में वहाँ पे, दैट शुड बी इवैल्यूएटेड बाय EQCR। नेक्स्ट, जजमेंट मेड विद रिस्पेक्ट टू मैटेरियलिटी एंड सिग्निफिकेंट रिस्क, कि मैटेरियलिटी के बेसिस पे, अगर मैटेरियलिटी कैसे कंप्यूट की उन्होंने, किस बेसिस पे निकाली, अनकरेक्टेड स्टेटमेंट कैसे थी, कि वहाँ पे कैसे इंक्लूड की, PM लेवल कैसे डिसाइड, OM लेवल कैसे डिसाइड किया, फैक्टर्स को कंसीडर किया कि नहीं किया, दैट शुड बी प्रॉपर्ली टेकन केयर फॉर। एंड significance and disposition of corrected misstatement and uncorrected misstatement, कि अनकरेक्टेड कितनी है, करेक्टेड है, उसका प्रॉपर्ली सिग्निफिकेंट मैटर कितना है वहाँ पे, अनकरेक्टेड के ज्यादा ना हो या करेक्टेड ज्यादा ना हो, दैट शुड बी प्रॉपर्ली मैटर टू बी कम्युनिकेटेड टू मैनेजमेंट और TCWG। अगर कोई ऐसा मैटर था जो कम्युनिकेशन करना था मैनेजमेंट या TCWG के साथ, जैसे जो ऐसे 265 260 की हमें कंप्लायंस करना था वहाँ पे, दैट हैड बीन डन और नॉट। Next, EQCR shall make objective evaluation of significant judgment by engagement team, that is discussion of significant matter with engagement partner, वो discussion करेगा, रिव्यू करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, प्रपोज ऑडिट रिपोर्ट को, क्योंकि अभी फाइनल रिपोर्ट तो हुई नहीं, तो प्रपोज ऑडिट रिपोर्ट है। रिव्यू ऑफ सिलेक्टेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टू सिग्निफिकेंट जजमेंट, कि वो सिलेक्टेड डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की रिव्यू कर लेगा वहाँ पे, कि प्रॉपर्ली सबके नहीं सिलेक्टेड करेगा, जो भी डॉक्यूमेंटेशन की होगी, चेकिंग की होगी, उसकी भी सिलेक्शन करेगा वहाँ पे, कि हमें इसकी दिखाओ, इसकी दिखा दो। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ कंक्लूजन रीच्ड इन फॉर्मुलेटिंग ऑडिट रिपोर्ट, कि हमने कोई की ऑडिट मैटर इशू किया है, हमने क्वालिफाई किया रिपोर्ट को, तो हमने कैसे इशू किया, उसको कंक्लूजन क्या हमारा, तो हमारे पास प्रॉपर्ली उसका एविडेंस है कि नहीं है, तो मींस उस बेसिस पे हमने किया है कि नहीं किया, दैट शुड विल EQCR will evaluate. Next, engagement team follow firm policy and procedure for dealing with the and deciding difference of opinion, resolving sorry, कि एंगेजमेंट टीम प्रॉपर्ली फॉलो करे फॉर्म पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को, अगर वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है वहाँ पे कि इस केस में क्या होना चाहिए था, तो उसको कैसे रिजोल्व किया, दैट शुड बी टेकन केयर फॉर नाउ। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग, हमने मॉनिटरिंग भी एलिमेंट था ये, अब इसमें क्या है, SQC1 रिक्वायर फर्म टू एस्टेब्लिश मॉनिटरिंग प्रोसेस डिजाइन टू प्रोवाइड द रीजनेबल एश्योरेंस दैट द पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स about the system of quality control are relevant and adequate and operating effectively, कि मॉनिटरिंग वही करेगा ना कि जो फर्म के पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बनाए हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल है, वो प्रॉपर्ली रेलेवेंट है कि नहीं, अभी भी एडिक्वेट है कि नहीं है, या ऑपरेटिंग इफेक्टिवली अभी भी ऑपरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, दैट शुड बी ऑन मॉनिटर। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी इन द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल not necessarily indicate that the particular audit engagement not performing in accordance with professional standards and regulatory and legal requirements, अगर कोई डेफिशिएंसी अराइज हुई है बाद में क्वालिटी कंट्रोल में, अब ये इंडिकेट नहीं करेगी नेसेसरली कि ऑडिट एंगेजमेंट प्रॉपर्ली कैरी फॉर नहीं हुई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, इससे ये इंप्लीकेशन नहीं होती। नेक्स्ट, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है ऐसे 220 के अंदर, आइडेंटिफाइड इशू दैट हैज बीन कंप्लायंस विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट एंड हाउ दे हैव बीन रिजॉल्व्ड, कि हमने रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट की कैसे कंप्लायंस की है, वो हम शो करेंगे वहाँ पे, वर्किंग पेपर्स डॉक्यूमेंटेशन दिखा देंगे कि हमने सारी चीज की डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू हुई होगी। नेक्स्ट, कंक्लूजन ऑन कंप्लायंस विद द इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस की हमने कंप्लायंस कैसे की वहाँ पे, ऑडिट चेकलिस्ट ओपन कर ली थी हमने हर मेंबर से वहाँ पे। नेक्स्ट, कंक्लूजन रीच्ड विद रिगार्डिंग टू AACR मींस एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, हमने कैसे चेकिंग की वहाँ पे। नेचर एंड स्कोप ऑफ कंसल्टेशन अंडरटेकन, हमने अगर कोई कंसल्टेशन थी, नेचर स्कोप था, हमने उसको कोई कंसल्टेशन ली थी किसी से, उसको कैसे अंडरटेकन किया गया वहाँ पे, जैसे हम कोई डिस्कशन कर लिया, हमने कोई वहाँ पे कंसल्टेशन ली होगी वहाँ पे, हमने कि हमारा डिफरेंस आ रहा है ओपिनियन का, तो हमने उसको कैसे रिस्पोर्ट किया वहाँ पे। सो ऐसे 220 रिवीजन इज देयर नाउ फाइनलाइज्ड, बट देयर इज सम चार्ट लाइक लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या, कि एंगेजमेंट पार्टनर की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके, दैट क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, क्वालिटी इज एसेंशियल। इंपॉर्टेंट में क्या चेक करेगा, परफॉर्म, कंप्लाई, इशू एंड रेज कंसर्न, परफॉर्म में क्या, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल रिक्वायरमेंट, कंप्लाई करेगा पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को, इशू करेगा ऑडिट रिपोर्ट को, रेज कंसर्न करेगा विदाउट एनी फियर। नेक्स्ट, एथिक सॉरी एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, एथिकल रिक्वायरमेंट्स हमारी ये है, दैट शुड बी टेकन केयर फॉर। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर में क्या आएंगे, जजमेंट, कि वो सबऑर्डिनेट ना हो किसी की, रूल्स दैट डजंट क्रिएट और एंश्योर इंडिपेंडेंस, कि ऐसे कोई रूल्स ना बना रखे हो, प्रॉपर्ली चेक किया हो। इट इज अ कंडीशन ऑफ माइंड एंड इट इज कंडीशन ऑफ माइंड, ये माइंड की है, इंडिपेंडेंस तो माइंड से होती है ना, कि हम किसी से मिल ना रहे वहाँ पे, वो पर्सनल कैरेक्टर उसका। एग्जिस्ट एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट, वो दिखना भी चाहिए वहाँ पे, एग्जिस्ट भी और उसके अपीयरेंस से। नेक्स्ट, इंटेग्रिटी ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंसियर एंड ऑनेस्ट, इंटेग्रिटी भी होनी चाहिए कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, अपने सिंसियर और ऑनेस्टली काम करे वहाँ पे। ऑब्जेक्टिविटी कैसे, वो प्रीजुडिस ना हो, बायसनेस ना हो उसकी वहाँ पे। इंडिपेंडेंस क्या होती है, 2 लेवल की, स्टेट ऑफ माइंड एंड अपीयरेंस से, कि स्टेट ऑफ माइंड से कैसे, एक्सप्रेसिंग ओपिनियन who will affect by the influences, means उसकी डेफिनेशन है वहाँ पे, उसके बेनिफिट क्या है, सेफगार्ड्स हमारे हेल्प करेगा,
एनहांस करेगा ऑडिट की एबिलिटी को यहाँ पे। अवॉइडेंस ऑफ एक्शंस और सिग्निफिकेंट सर्कमस्टेंसेस हम अवॉइडेंस कर सकते हैं। अब थ्रेट्स टू सिग्निफिकेंस क्या है वहाँ पे? सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फैमिलियरिटी, इंटिमिडेशन थ्रेट्स। देयर आर सम थ्रेट safeguard to independence, that auditor should be and appear to be independent before accepting. He should see the threats. अगर threats थे वहाँ पे तो उसने safeguards लिए हैं कि नहीं वहाँ पे? अगर safeguards लिए eliminate करने के तो accept कर ले, अगर नहीं लिए तो reject करे वहाँ पे, withdraw कर ले वहाँ पे। और even independent कैसे होना चाहिए? integrity, objectivity, वही ethical requirements हो वहाँ पे, independence वहाँ पे। नेक्स्ट AACR इंटीग्रिटी होनी चाहिए, फर्म क्वालिटी एथिकल कंप्लायंस वहाँ पे करे। एंगेजमेंट टीम कॉम्पिटेंट एंड केपेबल होनी चाहिए, मींस उनके पास टाइम एंड रिसोर्सेज होने चाहिए। सिग्निफिकेंट मैटर्स जो करंट या प्रीवियस ऑडिट में हो वो प्रॉपर्ली केयर फॉर हो, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी इन सबसे रिलेटेड। ऑडिटर तभी एक्सेप्ट करे जो अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन थी उसे पहले पता चलनी थी। अगर वो इन्फॉर्मेशन पहले पता चलती तो वो एक्सेप्ट ना करता वहाँ पे। जैसे रेजिग्नेशन का कोई रीजन था, उसे बाद में पता चला वहाँ पे, तो उसको रीजन से वो कर सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स की फर्म को पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बनाने ताकि रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करे कि सफिशिएंट पर्सनल है वहाँ पे जो कैपेबल, कॉम्पिटेंट, कमिटेड है वहाँ पे। मींस उनका मैट्रेस क्या क्या रिक्रूटमेंट ले कैसे हुई है, कैपेबिलिटी है उनके पास, कॉम्पिटेंट है, कैरियर डेवलपमेंट कैसे होगा, प्रमोशन कंपनसेशन उन्हें कैसे होगी, फर्म वैल्यूएशन उनकी कैसे होगी वहाँ पे। और बाद में ये रहा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, हम कैसे चेक करेंगे? कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मैनुअल्स बना रखे हमने, कंप्लायंस कर रहे हो मैं एंगेजमेंट का, ट्रेनिंग हो, कोचिंग और रिव्यू वर्क परफॉर्म का, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग क्या करेंगे? पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स की, किसकी? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड लीगल रिक्वायरमेंट, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की अप्रोप्रिएटली डिजाइन और इम्प्लीमेंटेड हो वहाँ पे, रिपोर्ट्स अप्रोप्रिएट और सर्कमस्टांसेस में, और अगर कोई नेसेसरी मॉडिफिकेशन में अगर करनी थी क्वालिटी कंट्रोल में, क्योंकि अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए तो दैट हैज बीन टेकन फॉर और नॉट। अब क्वालिटी अदर क्वालिटीज क्या है ऑडिटर की वहाँ पे? क्वेश्चन हो वहाँ पे, टैक्टफुलनेस हो, इंटेग्रिटी हो, गुड टेम्पर हो, मतलब जल्दी गुस्सा ना आए, पेशेंस हो, रिलायबिलिटी हो, क्लियर हेडेडनेस, माइंडफुल हो, डिस्क्रिशन ना हो वहाँ पे, उसकी फर्मनेस हो, और जस्टिफाई बाकी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, बीइंग अलर्ट, प्रोफेशनल क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, क्रिटिकल असेसमेंट हमने उसके करनी है। एग्जांपल होगी उसके प्रोफेशनल जजमेंट कहाँ करनी है? मेटलिटी के केस में, ऑडिटर्स के केस में, एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी के केस में। नाउ दिस हैव बीन डन नाउ, SA 220 रिवीजन डन fully. Let's end this firstly.